Hello, I'm Joanna and welcome to the show world of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who sandwiched him, who ditched him, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. फाइंडिंग फैनी की स्पेशल स्क्रीनिंग पर ऋतिक और करण की मस्ती और दीपिका को क्यों आया गुस्सा, ये सब दिखाएंगे न्यूज नाउ में। रीचा 3D को प्रमोट करने के लिए बिपाशा बासु आई इंडियाज रॉ स्टार के सेट्स पर, जहां प्रमोशन भूल एक कंटेस्टेंट की फैन बन गई बिपाशा। कुछ पुशअप्स दिखाकर और कुछ डांस मूव्स शो कर नरगिस फाकरी और जॉन इब्राहिम ने एक फिटनेस स्टोर लॉन्च को बनाया एंटरटेनिंग। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने यो हनी सिंह के शो इंडियाज रॉ स्टार्स के कंटेस्टेंट्स की सिंगिंग स्किल्स को क्रिटिसाइज कर खड़ी की नई कंट्रोवर्सी। और साथ ही दिखाएंगे फाइंडिंग फैनी में रणवीर और दीपिका के वेडिंग सीक्वेंस के कुछ बिहाइंड द सीन्स। ओ हाय रे मेरी फनिया बड़ी विट्टी विट्टी है, हाय रे मेरी फनिया बड़ी मिठी मिठी है। ओ हाय रे मेरी फनिया मोहतरमा तड़पाए, हाय रे मेरी फनिया मेरी जान ले जाए। शेक योर बुटिया ऑन द फ्लोर, What we didn't expect is the kind of reaction that we got to Shake Your Buttiya. वो एक तो Shake Your Buttiya वो तो ट्रेमेंडस आइडिया था। आई थिंक होमी ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली उस गाने को पेश किया है। ट्रेमेंडस आइडिया, आई मीन ग्रेट यूज ऑफ ग्राफिक्स। Shake your buttiya on the floor. Well, ये नजारा है फाइंडिंग फैनी की स्पेशल स्क्रीनिंग का, जहां फिल्म से ज्यादा पॉपुलैरिटी नजर आई फिल्म के सॉन्ग शेक योर बुटिया को लेकर। We thought Fanny Ray was the song that everyone will enjoy, but I think Shake Your Buttiya is what people are really enjoying. Shake your buttiya on the floor. You better get your buttiya on the floor. जबकि फिल्म की बात आने पर सभी ने सेंसर बोर्ड के द्वारा फिल्म को दिए गए 3 कट्स के बारे में कुछ यूं बताया। There are some cuts. Scenes is when they cut out entire scenes. There's a certain word that there was an issue, and there is a certain moment that there is an issue. But more than that, I think usually with every film, the film does go back and forth a couple of times before it's finally passed, and I think that's like usual routine. The first time I was kissed was on my wedding day, 15 minutes before my husband choked and died. I'm a virgin. The censor board, I mean, I can understand they're going through a bit of an uncertain time. So I guess they're being extra careful. They're doing their job, yeah, I'm doing mine. Censor recommended 3 cuts, which we've accepted. So I don't think there's an issue. It's been made much larger than it actually is. We respect the authorities and we're fine with it. The film still holds even with the 3 cuts that we've taken. वैसे इस स्क्रीनिंग पर फिल्म की कास्ट और क्रू में से पंकज कपूर और नसीरुद्दीन शाह तो मिसिंग थे, लेकिन दीपिका और अर्जुन के अलावा डिम्पल कपाड़िया ने भी लूटी काफी लाइमलाइट। ओ हाय रे मेरी फनिया बड़ी विट्टी विट्टी है, हाय रे मेरी फनिया बड़ी मिठी मिठी है। And among the other guests were Karan Johar and Hrithik Roshan, जो मीडिया फोटोग्राफर्स के लिए पोज करते हुए काफी मस्ती के मूड में नजर आए। प्यार वाले दिन सारे वे खत लिख के गुजारे वे, ओ फैनी रे, ओ फैनी रे। इनफैक्ट गोवा में बेस्ड फाइंडिंग फैनी की शूटिंग के दौरान गोवा की फेमस ड्रिंक फेनी पीने की बात पूछे जाने पर इन एक्टर्स को सूझी ये मस्ती। Do we like drinking Fenny? I've never tasted Fenny, but the film is Finding Fanny, not Fenny. Fenny की बात करें, yes, it's one of the most delightful things from Goa, which has been known for so many years. मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया, unfortunately. जब गोवा में, unfortunately, I would like to taste it, why not? But I remember we had this conversation while shooting also, but we never got down to tasting it or even trying it out. लेकिन इस बीच हैप्पी न्यू ईयर से जुड़े एक सवाल पर पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई दीपिका। I think your question is absolutely irrelevant and should not be discussed so frivolously. दरअसल सवाल ये था कि हैप्पी न्यू ईयर के एक्टर्स को मिल रही अंडरवर्ल्ड थ्रेट्स की टाइमिंग फिल्म की रिलीज डेट के करीब होना कहीं कोई फिल्म प्रमोशनल गिमिक तो नहीं। तो बस इस बात पर कोई रिएक्शन देने के बजाय दीपिका को आ गया गुस्सा। You think it is a promotional gimmick somewhere because the newspaper said it, since you are a part of it, what is your reaction to it? I think your question is absolutely irrelevant and should not be discussed so
frivolously. जबकि एक दूसरे इवेंट पर हैप्पी न्यू ईयर में दीपिका के ही को स्टार सोनू सूद ने इस सवाल पर काफी कूलली एक सीधा सा जवाब दे दिया। पहले सुना करता था, ऐसी धमकियाँ आती हैं, अभी एक्सपीरियंस करने को मौका मिला, बट कोई जिंदगी नहीं बदली। मैं वैसे ही जिम जाता हूँ, वैसे ही बाहर निकल जाता हूँ। निजी जिंदगी में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद परिवार वालों को थोड़ा सा लगता होगा, थोड़े से चौकन्ने ज़्यादा हो जाते हैं, बट मेरी जिंदगी वैसी ही है। मैं वैसे ही निकलता हूँ, वैसे ही सब काम करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं दीपिका, वी होप कि फाइंडिंग फैनी की रिलीज से पहले ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। I think your question is absolutely irrelevant and should not be discussed so frivolously. और हाँ, जाते जाते इस कंट्रोवर्सी से गर्म हुए माहौल को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं फाइंडिंग फैनी में दीपिका और रणवीर के वेडिंग सीक्वेंस के बिहाइंड द सीन्स के साथ। सो टेक अ लुक। Discussing this character, Gabo. There was no face to the name. One of us was like, hey, why don't you do it? He prepared for it like he would for a full-on film. It's a very, very fun scene. Homie explained it to me yesterday. Aisa hoga, then this will happen, then this will happen. So I'm quite excited to perform it today. Roll camera and background action. Everyone react to them. Okay, my parents also. I'll only have it. And go for the big bite now. Oh, Mudo. Oh, now last day after this only here. I don't know anything about Gabo. I've come this morning with a mind like a blank slate. If you need or want to know about Gabo, I think you will have to ask the director, Mr. Hamid Jamia. Gabo! That's a wrap for Ranveer Singh. Wow. I'll do some more in Finding Fanny Fernandez too. So you just, shake those hips, shake those hips. अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में मारा बम डोले. And I feel sexy when I'm doing it. Do you feel sexy when you're doing that? कुछ सेक्सी बातें. Do you feel sexy when you're doing that? कुछ मैरिज टॉक्स. Life after marriage. कुछ वर्कआउट. और कुछ फिटनेस ज्ञान भी. मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे वर्कआउट करना ही पड़ता है। वेल, ये है एक फिटनेस स्टोर कम फिटनेस स्टूडियो का लॉन्च, जहां दिखे फिटनेस एंथुसियास्ट जॉन इब्राहिम और नरगिस फाकरी। लेकिन यहाँ जॉन वो काम करने में शर्मा गए जिसे नरगिस बिंदास तरीके से सबके सामने कर रही थी। We mean एक जुम्बा वर्कआउट regime. The man is here. He's here. He is here. The man. The man. I was waiting for you because I'm supposed to show a move, some kind of dance move, some kind of workout move, and I wanted you to participate. So I'm gonna do it now, right? It's sort of like a salsa mumba style. So you just shake those hips. Come on, let me see. Can you do that? Can you shake those hips? Can you salsa? Come on, let me see. Come on, John, let me see. Do this move. It's dance aerobics. So it's like just stepping backwards and using the hips. Well, you've just done a song and yes. अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में मारा बम डोले. I feel sexy when I'm doing it. Do you feel sexy when you're doing that? No, I'm pretty shy and I don't understand how shy? I'm meant to do this.
और इस डांस वर्कआउट के बाद इट वाज टाइम टू गेट सीरियस, जहां जॉन ने कुछ रिपोर्टर्स को बुलाया टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्कआउट। और फिर जॉन और नरगिस ने मिलकर खुद किया एक पुशअप सेट भी। लेकिन यहाँ जॉन नरगिस पर भारी पड़ गए। कैसे, आप खुद ही देखिए। लगता है नरगिस के फिटनेस लेवल्स अप टू द मार्क नहीं है। मूविंग ऑन, ये सारे फन वर्कआउट्स के पहले जॉन ने सभी को दिया अपने यूजुअल अंदाज में फिटनेस ज्ञान। Fitness is a way of life. Imagine spending 365 days in a religion that's called fitness. It's the best religion in the world. मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे वर्कआउट करना ही पड़ता है। That's it. और जब किसी ने जॉन से एक इम्पोर्टेंट फिटनेस रिलेटेड सवाल पूछा तो जॉन रिफ्यूज टू कमेंट। Life after marriage. We talk about fitness. Maybe the related benefits of fitness also. Yeah, we talk about fitness. I mean, trust me, we'll do an interview on that. A full interview, full-blown interview on that. वैसे जॉन ने ना सिर्फ लाइफ आफ्टर मैरिज बल्कि अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में भी कमेंट करने से मना कर दिया। फिटनेस पे पूछे ना, क्या कर रहे हो आप यार? फिटनेस पे पूछे, पूछे कुछ फिटनेस पे, बोलो पुशअप्स के बारे में कुछ करो इधर। वेल, तो ये रहे नरगिस फाकरी और जॉन अब्राहम एंडोर्सिंग फिटनेस वंस अगेन। अंजन की सिटी में मारो बम डोले। इंडियाज रॉ स्टार के कंटेस्टेंट ने दी ये परफॉर्मेंस। और बना लिया बिपाशा बासु को अपना फैन। जी हाँ, कुछ इसी तरह बिपाशा बासु बन गई हनी सिंह के इस टैलेंट शो के कंटेस्टेंट सूरज की बड़ी फैन। It's a heart connection. It's just the way he sang. What a performance! What talent! It's not raw. Yeah. This is a star. This is not. He is a star. He touches you. This boy, this guy needs to be right on top. And you all have witnessed what I have witnessed. So support this guy. He's fantastic. You need more talent. और अपनी फिल्म क्रीचर 3D का प्रमोशन भूलकर बिपाशा ने इस कंटेस्टेंट से कर दी एक और परफॉर्मेंस देने की डिमांड। जिस रीजन के लिए आई हूँ वो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं करता। Really, I want to hear you more. I'm not going to let this opportunity go. I want to hear more Suraj. You guys want to hear Suraj? Everybody else wants to hear Suraj? हालांकि सेट से बाहर हुए मीडिया इंटरैक्शन के दौरान जरूर बिपाशा को याद आ गई अपनी फिल्म क्रीचर 3D की यूनिक क्वालिटीज। आपको विश्वास है आपने अच्छा काम किया है और ऑडियंसेस एंटरटेन होएगी, एंड स्पेशली फॉर फिल्म लाइक क्रीचर जो एक नई फिल्म है जिसको एक्चुअली ऑडियंस को अंदाज़ा नहीं है कि क्या फिल्म है। मुझे लगता है जो क्रीचर का फर्स्ट शो लगेगा वो उसका बेस्ट प्रोमो होगा। यू नो दैट्स गोइंग टू एस्टैब्लिश व्हाट काइंड ऑफ अ फिल्म इट इज़,
क्योंकि YouTube में देख के, यहाँ देख के आप लोग को कुछ छोटे TV पे देख के आपको कभी समझ नहीं आएगा what kind of special effects we have done. Unless you see it in the theaters, you don't know what Creature 3D is all about. So it's my humble request that people should give it a chance and watch this film because it is very enjoyable. और बिपाशा ने क्रीचर की कामयाबी को लेकर भी अपना कॉन्फिडेंस बखूबी जता दिया। Actually, it should work. It should work because it's one of its kind. It definitely showcases the talent of the special effect artists that we have in India. I think the audiences are intelligent. They will give it a chance. और जब बात आई किसी ऐसे रियल लाइफ क्रीचर की जिससे डरती है बिपाशा, तो इस पर ये था बिप्स का जवाब। चिपकली से बहुत डरती हूँ। हाँ, अगर चिपकली इधर आए तो मैं घर पहुँच जाऊँगी 1 सेकंड में। चलिए, ऑल इन ऑल इस टैलेंट शो पर आकर बिपाशा ने काफी प्यार बिखेरा और साथ ही किया क्रीचर 3D का प्रमोशन। गुड लक टू हर फॉर द फिल्म। ये लड़ाई सबसे ज्यादा मेरी है। There is no choice but to fight. सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। आजकल के जो दिमाग हैं उनको फास्ट चाहिए हर चीज़। कंप्यूटर में गूगल मिल गया सब कुछ। गाने में ऐसा गूगल नहीं है, गाने में मेहनत है। आपको कंप्यूटर से गाना नहीं आएगा, आपको गाना गाना पड़ेगा गले से, दिल से, पेट से, तब जाके गाना आता है। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी के ये कमेंट्स एक बार फिर सिंगर यो यो हनी सिंह को कर रहे हैं कटघरे में खड़ा। आज जो रॉ जिसको गवा रहे हैं और जो गा रहे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं सुना, एक ही प्रोग्राम देखा कि वाकई क्या चल रहा है। उसमें बड़े रॉ तो छोटे होते हैं, ये बड़े बड़े मतलब मिडिल नहीं होगा, 25 से ऊपर हो, 25 तक के, 25 तक का आदमी का अगर बेसुरा सुर हो तो सुर में कभी नहीं आएगा। और जो आवाज़ उसकी बन गई है आ करके या ओ करके, वो कभी चेंज नहीं होगी। आशा जी के इन कमेंट्स ने उठा दिए हैं हनी सिंह के शो रॉ स्टार और शो के कंटेस्टेंट्स की सिंगिंग स्किल्स पर सवाल। वो चेंज तभी होती है जब इतना छोटे बच्चे को कहा जाता है आ करके गा, ये सुर बराबर नहीं है, सुर लगा के 1 घंटा बैठ, ये जो कहा जाता है ओम, तब जाके वो तैयार होते हैं। वो तैयारी के बाद वो बात जो गाएंगे वो सुर में गाएंगे, अच्छा गाएंगे। आशा जी को इन रॉ स्टार्स का ना रॉ समझ में आता है और ना ही रॉक। आप बोलेंगे कि बड़े बड़े बच्चे रॉ, मैं समझी शायद रॉक गाना होगा कि रॉक आजकल का जो चल रहा वो होगा, तो वो समझ के मैं देख रही थी, लेकिन ना मुझे रॉक मिला ना रॉ मिला। यहाँ तक कि आशा ताई ने शो के मेकर्स को भी दे डाली ये सलाह। जो लोग ये शो बनाते हैं वो अगर हमें बुलाए और कहें कि आप बच्चे चुनिए, तो हम चुनते समय ही बच्चे ऐसे चुनेंगे कि वाकई अच्छा गाते हैं। फिर हमको सिखाएंगे कि ये गाना ऐसा नहीं ऐसा गाया जाता है, ऐसा नहीं ऐसा गाया जाता है। उसके बाद वो जो गाएंगे वो उनकी तकदीर, पर थोड़ा सिखाने वाला होना चाहिए और बच्चे थोड़े छोटे होने चाहिए जो सीख सके। हनी सिंह और उनके शो रॉ स्टार को लेकर किए गए कमेंट से एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं आशा ताई। लेकिन ना मुझे रॉक मिला ना रॉ मिला। अब लेजेंडरी सिंगर आशा ताई ने रॉ स्टार्स पर सवाल खड़े किए तो बॉलीवुड में भी छिड़ गई इस बात पर बहस कि आशा ताई का रॉ स्टार्स के लिए ये क्रिटिसिज्म कितना सही है। I think Asha ji is a humongous legend. एंड वो जो भी कहे आई थिंक वी हैव टू टेक वेरी सीरियसली, वो उनकी राय है। एंड आई एम श्योर, मैं सहमत हूँ कि आजकल के जो गाने हैं दे आर वेरी डिफरेंट एंड अनयूजुअल, और जिस किस्म के गाने आशा जी, लता जी उन्होंने परफॉर्म किया है, गाया है, इट्स ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर। सो मैं समझ सकता हूँ कि उनकी भावनाएं क्या है, बट ऑल हैव टू से इज दैट वी आर इन दिस जोन एंड वी हैव टू काइंड ऑफ try our best to make the best in the given scenario. I think everybody in our country has a right to an opinion. She also has a right to an opinion, and she must be feeling it for a certain reason. I'm sure she must be having a reason. I think like Arjun said, I think everyone has their personal preferences, personal tastes.
But for someone like Asha ji, I mean, I completely respect her opinion. Well, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यही है कि बदलते वक्त के साथ म्यूजिक भी बदला है और लिसनर्स का टेस्ट भी। इसीलिए हनी सिंह का हर गाना चार्ट बस्टर्स में पहले नंबर पर होता है। चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, इस चश्मे को हटा लो, आंखों को मिला लो, आंखों की नशीले जाम आंखों से पिला दो, लगता हम पहले कहीं मिले या हुआ मुझे डेजा vu, इधर उधर कहाँ देखे girl I'm talking to you, अब आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। और ऐसे में हनी सिंह के लिए आशा ताई की ये ओपिनियन फिर ऐसी ही कंट्रोवर्सी को हवा दे सकती है जो पिछले जीमा अवार्ड्स के दौरान हो गई थी, जिसमें आशा जी ने हनी सिंह को ना जानने की बात तक कह दी थी। नए काफी सिंगर आ रहे हैं, आपको अच्छे लगते यो यो हनी सिंह है? कौन? यो यो हनी सिंह है, आपको उनके गाने? मैंने सुना ही नहीं सुना, मुझे उनका टाइम ही नहीं है। और तब भी हनी सिंह ने इसे काफी पॉजिटिवली लिया था। आशा ताई ने कहा है कि मैं जो है हनी सिंह को नहीं पहचानती, ये कौन है, कौन सा तो ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि जो कि हर कोई आशा ताई, लता जी जो ग्रेट सिंगर हैं वो भी आपको पहचाने? वो भी पहचान जाएंगे जब थोड़ी सी और न्यूज़ बना लूँगा बड़ी। अभी मुझे लगता है कि 5-10 लाख लोग सुनते होंगे, जब 100 करोड़ जनता सुनेगी तो शायद उनको भी पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। और अभी भी वो आशा जी के इन कमेंट्स को काफी पॉजिटिवली लेते हैं। बट आपके अंदर के जो कलाकार हैं, देसी कलाकार आप खुद को कहते हैं, आपके अंदर का जो कलाकार आप जब भी लेके आते हैं नई नई चीज़ों के साथ, वहीं कुछ लोग नाखुश हो जाते हैं उन सब चीज़ों को लेके, आपके रैप्स को सुन के। वो बॉलीवुड के काफ़ी सारे वेटरन सिंगर भी हैं, चाहे आशा जी हो गए, तो इन सब बातों को आप किस तरह लेते हैं? एज अ पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिविटी? सब कुछ पॉजिटिव वे में लेता हूँ सर, मैं सब कुछ पॉजिटिव वे में लेता हूँ। नहीं, आशा जी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि हनी सिंह कौन है मैं जानती तक नहीं। हाँ, मैं भी नहीं जानता आशा जी को। नहीं, हनी सिंह कौन है जी। खैर, अब कौन सही है और कौन गलत ये तो पब्लिक ही बता सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि आशा जी के इन कमेंट्स ने उनके और हनी सिंह के बीच के डिफरेंसेस को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। That's all for now, but for more Bollywood updates, stay tuned with us.